Hey everyone, welcome back to my podcast. We have a very special guest, Harshita. It's her birthday today as well. जो मेरा previous podcast था, it was more of a conversational thing in which we both were putting up views and saying things and coming to the common ground. In this podcast is somewhere different, I would say. है ना, right? It's more of like I know nothing about the topic, or like I'm curious about the topic, and she's going to tell me about various things, what things that I asked. So it's going to be fun, right? Yeah, definitely. You want to say something before the podcast, or like anything else? That I'm excited about it. Yeah, and you can feel free to ask whatever you want. Yeah, and yeah, let's see how it goes. Yeah. Like I always ask to my guest this question: why are we here? What's the thing that brought us here today to have a conversation? Yeah, so today we are here to discuss more about religion and understand the various concepts involved in it, like to know more about the depth of the religion and not just the superficial part. So I think I'll try to do justice to the topic. Yeah. My first question about the religion is, I want to ask you this. Starting से start करते हैं that what is the definition of religion? What it is about, the beliefs and everything, कि कितने time से people are following it until मतलब starting from the mankind से आज तक people are following it. So what is the definition of religion according to you? So I'll not give you the Google definition, which you can also look up. But I want to tell you the religion which I've experienced since my childhood. Based on that, what I feel the exact definition of religion is just the religion of love. There is only one religion, and that is the religion of love. So like you mean that every religion, so-called religion, जितने भी सारे हैं, they teaches you one common ground, that is to live with like love and compassion. See, so I'll answer your question with one beautiful quote, because I think it will be able to convey the answer. Okay, so there is only one religion, the religion of love. There is only one caste, the caste of humanity. There is only one God, and he is omnipresent. So these are the words of Bhagwan Shri Satya Sai Baba, the one whom I believe and follow. It was also quoted by Aishwarya Rai, na, at some. She is a devotee of him. She is a बाल विकास student. So like, अब बाल विकास नहीं पता होगा तो बताऊँ? हाँ, sure. देखो, बाल विकास मतलब वो है कि जैसे जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ ना, वहाँ पे हमें from childhood more emphasis is given on human values than education. So it is like हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं. It's a कुछ सालों का कोर्स होता है ऐसे करके, जिसमें हमें वैल्यूज़ दिखाते हैं, सिखाते हैं, और शी इज़ बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो शी नोज, शी हैज़ द सेम कोर सब्सटेंस. What it is about? Like I'm curious कि क्या सिखाते हैं? बाल विकास. हाँ. देखो, बाल विकास में हमें क्या सिखाते हैं? वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, बेसिक 5 एम्फेसिस इज गिवन ऑन 5 वैल्यूज़: ट्रुथ, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा. ट्रुथ, राइचियसनेस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस. और मेन एसेंस तो यही है. बाकी तो 6-7 साल जब से मैं छोटी हूँ, मैं जा ही रही हूँ इन क्लासेस में, तो मतलब 12 ईयर्स तक आपको ग्रूमिंग करते हैं और सिखाते हैं कि जैसे स्क्रिप्चर्स की स्टोरीज से रिलेटेड लेसन्स बताते हैं जो भी हैं, और मिरेकल्स जो रियल लाइफ में हमारे साथ भी हुए हैं उनसे रिलेटेड बताते हैं, और जो वेद और उपनिषद जो हमारे जो वेद हैं वो क्या सिखाते हैं. हमने वेद सीखे हैं, तो वो सब होता है उसमें, ऐसा कुछ पढ़ाते हैं. So how does it like changes you as a person? कि it will make you wiser, or like people like with full of wisdom, person with full of wisdom? See, it helps you to tackle life better. And जो हम इन क्लासेस के थ्रू गेन करते हैं वो हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ में को एनहांस करता है. how you face challenges in life and how you address every problem. और मेरी ग्रोथ आपको दिखाई दे या किसी और को दिखाई दे, it's not necessary, because you might not be able to relate it, but you feel it. And religion is that which gives you the core principle of your life. Like I have a goal, I have an aim in life, I stand by certain principles. Like वो सिखाया जाता है. और जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, so you can fall back on something, and you know what to fall back on, and it's not something like unreliable sources like friends or who are just temporary, but it's more a solid stone like on whom you can rely when, and you know that
you're definitely going to get an answer. So it's more about that, and we felt it. So अगर हमें जैसे कुछ होते हैं कि बचपन से हमें सिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं फैमिली में कि मंदिर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली रोबोट की तरह करने लग जाते हैं, बट वी डोंट नो द रियल रीज़न वाई वी आर डूइंग इट ऑल. तब आते हैं आपको डाउट्स. तो व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ इट यू स्टार्ट गेटिंग डाउट्स. बट वो जो क्लासेस थी उनसे मुझे ओरिएंटेशन मिली और मुझे ये पता लगा कि या आई एम ऑन द राइट पाथ. सो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, वॉज ए फैमिली ए पार्ट ऑफ इट एज वेल? या सो दैट इज़ माई क्वेश्चन कि अगर लेट्स से हैड इट बीन द केस कि योर फैमिली इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट जो भी संस्था है, still you would have chosen that to follow that or not? Yeah, because even my family was at once not a part of it, na. So, but okay, your question is even if they were not a part of it, if I would have followed, they would have sent me for these classes, and that's what I'm telling you. I would do with what I would have done with the kids I've known. There are so many people who come to these classes who are not even devotees. You don't have to follow, but they come for like Gain something. yeah, just to gain some knowledge apart from what the education that we learn at schools is. So they just send for human values education, and then they see the grooming the child and they're like so happy. So many people have attended these classes of these Bal Vikas classes, but it's like they have felt the difference in their child and the way he's behaving and everything. So they've become devotees later on. And they have become because of the spiritual transformation that they're seeing in their kids. Not because of anything else, not because people are, it's just so that वैसे सेंड तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि दिन में इतने प्रोडक्टिव, हमने अपना बच्चे को कुछ प्रोडक्टिविटी भी सिखानी होती है, तो ताकि उसका माइंड बाकी चीज़ों से डाइवर्ट करके कुछ और इसके लिए भेजते हैं. लेकिन when they see that it's changing him so much and it's affecting his personal life in a positive way, so they opt for it. Yeah, they continue to send. तो थिंग्स लाइक और इंस्टीट्यूशंस लाइक बाल विकास तो यू से कि जैसे आई थिंक आई वुड कंसिडर देम एज अ काउंटर पार्ट्स ऑफ राधा स्वामी सत्संग व्यास और लाइक एनी अदर लाइक पीपल फॉलो ना सच थिंग्स. तो सबका लाइक डिफरेंट पर्टिकुलर चीज़ होती है. बट माई क्वेश्चन इज़ द कॉमन ग्राउंड पे जो रिलीजन्स हैं, जो मेजर रिलीजन्स हैं दैट पीपल फॉलो, तो हाउ इज़ फॉलोइंग अ रिलीजन डिफरेंट देन बीइंग अ पार्ट ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस? Like that, is it a difference or like it's the same thing? Because in that way also you are following something, following some beliefs, following the beliefs of your idols, what your Vedas and the scripture said, और इस particular case में भी वही है. So कुछ difference है like ऐसा? या देखो मतलब अगर फॉलोइंग अ रिलीजन उसी के अंडर आ जाता है जैसे, बट बाल विकास एंड ऑल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज यू कैन सेंड अ क्रिश्चियन टू इट, यू कैन सेंड अ मुस्लिम टू इट, यू कैन सेंड अ हिंदू टू इट. इट्स जस्ट अबाउट the spiritual values. Yeah, the lessons might change a bit because अगर हम हिंदूज़ हैं, like I am a Hindu, and so उस जो मेरे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं उससे वो रामायण और महाभारत पे बेस्ड होंगी स्क्रिप्चर्स. बट अगर कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है तो द बेसिक कमांडमेंट्स ऑफ लव, ऑफ वैल्यू, ऑफ द मोरल वैल्यूज दे डोंट चेंज एट ऑल, एंड ऑल रिलीजन्स एम्फसाइज दैट. दैट्स व्हाट वी हैव टू रियलाइज कि जो हमारी मेन रीज़न है behind all the religions, the core essence is that we reach God. He's the ultimate goal of life. If you're not even a religious believer, if you just believe in doing good and just following your life based on these 3-4 principles, that also will make you reach the same goal. What you're talking about, it's a very ideal world, I would say. It's a thing जो मैं expect भी करता हूँ कि religion से, like because seeing the track record of India like from past couple of years, I don't think that religion is being followed like it should and it used to be. It was like a part, पहले तो religion was like a key, religion or like any particular belief I'm talking about, it was like a key to like you said, to achieve God and achieve something like great in life. But अभी क्या है, it's being to tell your superiority complex via religion, कि why my particular religion is superior than other religion. Do you want to say something about it कि आज कैसे the definition of religion has changed? देखो, the main thing behind religion was, like I said, based on love. But अब क्या है कि लोग वो main principle को भूल के they are just centralizing their lives based on certain beliefs which they're not going to change no matter what. अब बट अगर आप वैसा, वही मैं बोलना चाहूँगी, एक एडवाइस है दैट द थिंग इज, आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो फॉलो इट रिलीजियसली, डोंट शिफ्ट बट डोंट क्रिटिसाइज. You have no right to disrespect the other religion. They be it a Christian, be it a Muslim, be it a Hindu, just practice your own religion. That's what we've been taught, that practice your own religion.
religiously but respect every other religion. And why, and now you might have a doubt like why you have to follow only your religion and why can't you follow, like I am a Hindu, why can't I follow Christianity, why can't I follow only Sikhs? So the thing there is that अगर आप साथ में ठीक है आप सोच रहे हो कि ये प्रिंसिपल्स मुझे उनके भी अच्छे लगे तो आई वुड लाइक टू फॉलो, ये करना चाहूँगा मैं, वो करना चाहूँगा, यू आर जस्ट गोइंग टू लाइक कन्फ्यूज्ड एंड यू विल नॉट रीच द अल्टीमेट गोल. Paths may be different but the goal is the same, but the path that you have chosen you have to stick to it, otherwise आप कंफ्यूज हो गए. यू ऑल सीन पीके ना, सो इट्स लाइक दैट. अगर आप एक बिलीफ यहाँ का मानोगे वहाँ का मानोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं आपके किसी भी रिलीजियस बिलीफ को क्रिटिसाइज करूँगी. दैट राइट आई डोंट हैव, बिकॉज द मेन थिंग इज ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड. सो दैट इज़ लाइक आप सब आपस में भाई हो और हम हैं भगवान के ही हैं, तो वो डिफरेंस मैटर नहीं करता कि आप कौन से रिलीजन फॉलो कर रहे हो. अच्छा, वाई वी आर सेइंग दिस कि वही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, बिकॉज अभी जैसे क्रिसमस था एंड वी हैव सीन वीडियोज़ जहाँ पे देयर इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे लिटरली वेंडलाइज्ड द ऑल द क्रिसमस डेकोरेशंस एंड स्टफ. तो आई रियली डोंट नो व्हाट दे wanted to achieve by that or what pleasures they get by doing it. So I don't know, I think काफ़ी फ्रेजाइल हो चुका है लोग काफ़ी अपने रिलीजन को लेकर. दे आर की इधर दिस और नथिंग. सो ये जो डिफरेंसेस आते हैं ना बिटवीन क्रिस्टियनिटी, बिटवीन मुस्लिम्स, बिटवीन हिंदूज, दैट्स बिकॉज दे सी देम एज सेपरेट एंड अस एज समथिंग सेपरेट. वी आर एक्चुअली ऑल द सेम. बॉडी इज समथिंग इम्परमानेंट, जो हिंदी समझते हैं जैसे कि जो हमारा शरीर होता है वो नश्वर होता है और उसी शरीर में अलग अलग आत्माएं आती हैं और आत्मा हमेशा सेम ही रहती है. देयर इज़ नो डिफरेंस इन ऑल ऑफ अस. सो if I see you as what I see myself, then I will never find any faults in you or I will not criticize you or see something different. So वो डिफरेंस आ जाता है जब क्रिश्चियंस मुस्लिम्स एक दूसरे को अलग मानने लग पड़ते हैं और इन दैट उस रेस में वो प्रूव करने लग जाते हैं कि हम सुपीरियर हैं. जैसे कि अभी भी हुआ जो आप बोल रहे हो कि क्रिसमस पे उन्होंने जो ये क्यों उनको बुरा लगा जो सिक्स वगैरह थे, बिकॉज इट वाज द मार्टिडम वीक ऑफ देयर गुरुज. जैसे शहीदी सप्ताह जिसको कहते हैं हम, 21 से 27 दिसंबर तक था आई गेस. तो उसमें उनको ये लगा कि इसमें हमारे गुरुज ने हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया एंड दैट we cannot go about saying Merry Christmas to everybody or celebrating that. So इसका आंसर और the right reaction would be what I'll tell you कि इसमें आपने ठीक है आप सीखो तो आप अपने उसको मानो, ठीक है आप थोड़ा जो भी आपके रिचुअल्स हैं इस पीरियड में वो आप करो, but instead of doing what you are supposed to do, you're going about and interfering with what they are doing. That is wrong. You don't have to go about telling people that you should not celebrate Christmas because our gurus did this or that did. The main thing is that we are all same. That's why I said you cannot confuse paths. Whatever you are taking, take it, but have complete respect for the other religion because we are all the same. Obviously, especially in a country like India, which is known for secularism, I think I think we should set an example that how so many people of different religions are living under one land, and I don't know what's happening still. So my next question is related to our generation. अभी ठीक है कि आज के जनरेशन में ऐसा है कि पीपल आर क्वेश्चनिंग एवरी सिंगल थिंग. हमारी जनरेशन के लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर लेट से तुम ये चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, व्हाट यू विल गेन आउट ऑफ इट. तो जैसे पहले बहुत लाइक होता था ना कि रिवर गंगा पे ही सारी वो तुमने अस्थियाँ भी बहानी है, तुमने सारा वो भी करना है. अभी के पीपल आर लाइक क्वेश्चनिंग इट कि वाई आर यू ट्रीटिंग आवर रिवर्स लाइक दैट. और कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस की कोई भी प्रैक्टिस है तो people ask about it and question about it. So you think that people are going towards the practical side abhi? They are more of like believing कि religion is not something that should be materialistic and it should come within heart. Yeah. It's I mean our generation is actually doing the right thing and I am not criticizing them for that. तो मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं तो उन्होंने जो भी उनको बताया गया, जैसा समझाया गया, उन्होंने उसे मान लिया. इन अ वे इवन दैट इज़ राइट बिकॉज दे गॉट टू एक्सपीरियंस इट एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज मेक्स यू फील बेटर दैन जस्ट ब्लर्टिंग आउट योर क्वेश्चंस. जब आपको कुछ नहीं समझ में आता ना, like most of us do that, we go into silence, we think deeply about it, overthink and this and that, instead of rather just blurting out things or asking questions blatantly like ये क्या है वो क्या है. आप शांत रहो, आप एक्सपीरियंस करो and you will have answers in jiffy. मतलब आपको सेकेंड्स में आंसर्स मिलेंगे. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई टेल यू, जैसे हम भगवान श्री सत्य साई बाबा में मानते हैं ना, तो ही
an editor came to him and he said like same question as this, like why should I believe? He told him also that the editor's name is like R.K. Karanjia. So he was advised, he was told कि अगर आपको भगवान को एक्सपीरियंस करना है तो आप जाओ पुट्टापर्थी में, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ ऑब्वियसली, तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस करो, मतलब बैठो शांति से, आपको अपने सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर होते हैं. It's never that you go asking people one place to another, where is God, where is God, is he there? It's like asking my dad, I don't believe that you are my dad, show me your DNA proof, I need the proof of your existence. Do we question our parents like that? We just feel it. From the time we were born, we knew she is our mother and we knew he is our father. You feel it. You get the experience by being in the right place amongst the right people and for the right company. I suggest that everybody must visit the place. तो आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग थिंग्स अगेन, लाइक कि जैसे पर्टिकुलर बिलीव्स है, जैसे कि डोंट ईट नॉन वेज ऑन ट्यूसडेज, और लाइक एक पर्टिकुलर डेज हैं जहाँ पे पीपल इतने ज़्यादा उस पे तादाद पे दे गो टू दे रिलीजियस प्लेसेस एंड स्टफ कि ये तो करना ही करना है. कितनी लाइक एक वीडियो भी वायरल है, हर साल होती है इन गणेश चतुर्थी यहाँ पे महाराष्ट्र में. इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल, लाल बागचा टेम्पल इफ यू नो ना. तो दैट टेम्पल इज़ नोन फॉर दैट ओनली कि वहाँ पे एक डिफरेंट एक सेपरेट VIP दर्शन के लिए एक सेपरेट होता है, एंड 1 feet ऑफ गॉड इज़ डेडिकेटेड टू VIPs एंड 1 feet ऑफ द गणेश इज़ डेडिकेटेड टू द कॉमन पीपल, जहाँ पे पीपल आर जस्ट दर्शन कर रहे हैं वहाँ पे फॉर लाइक 5 to 10 seconds, 5 से 10 सेकेंड भी नहीं, मतलब वहाँ पे लिटरली वो सिक्योरिटी होती है उनको हटाने के लिए. देयर सो मेनी वीडियोज़ जहाँ पे ये देखने को मिलता है दैट कि बस करना है हम लोगों को और इसी से ही होगा. दे विल अचीव द थिंग्स एंड दे विल फाइंड द आंसर्स और दे विल प्लीज द गॉड बाय डूइंग थिंग. और वो जो उसका मोटिव होता है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं इट गेट वैनिश अवे, इट गेट फेड अवे. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम ही चाहिए. तो इनफैक्ट हमें एड्रेस कैसे करते हैं? एज एम्बॉडीमेंट्स ऑफ लव. वी आर ऑल एम्बॉडीमेंट्स ऑफ लव. सो ही सेज आई आस्क नथिंग ऑफ यू एक्सेप्ट लव एंड डिवोशन. कोई ऐसा मुझे भक्तों में ये नहीं होता कि कौन ऊंची जात का है या नीची जात का है या फिर कौन रिच है या कौन पुअर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. मेरे लिए वो मेरे प्रिय है जो प्रेम से बात करे और सबकी सेवा करे, बस वही है. तो इफ़ यू नो दैट स्टोरी फ्रॉम महाभारता, दैट वेयर कृष्णा इज़ हैविंग हेडेक एंड उसमें वो बोलते हैं कि जो उनकी वाइफ्स होती हैं जैसे रुक्मिणी और सत्यभामा, वो इधर उधर भागते हैं कि समथिंग वी हैव टू गिव टू हिम टू मेक हिम फील फाइन अबाउट इट. बट वॉट ही एक्चुअली आस्क्स फॉर इज द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ गोपिकास. वाई? बिकॉज एवरी atom in their body is drenched with love, devotion, and that alone is sufficient for him. सो आप जो लाइक लव बोल रहे हो, लाइक कि गॉड को वो पसंद है, तो व्हाट इज़ द नीड फॉर पीपल देन टू गो टू द इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल्स और बाकी सब जाने की क्या ज़रूरत है अगर गॉड ऐसे ही मिल जाएंगे? जब महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था तो शी डिडंट रन अबाउट टू टेम्पल्स हियर एंड देयर. शी कॉल्ड आउट फ्रॉम हर हार्ट एंड ही मैनिफेस्टेड फ्रॉम हर हार्ट ओनली. तो बस भगवान यही बोलते हैं कि योर हार्ट इज़ द वन प्लेस वेयर आई रिसाइड इन. यू डोंट नीड टू रन टू टेम्पल्स कि यार आज तो ओकेजन थी, जैसे आज मकर संक्रांति और आज मैं मंदिर नहीं जा पाई या मैंने टिक्का नहीं लगाया या फिर कुछ ऐसा, तो वो कुछ भी नहीं होता है. आप अपने मन से जहाँ भी भीड़ में भी खड़े हो और आप भगवान को याद कर लो तो इट्स डन. इट्स नॉट दैट यू हैव टू रन हियर और देयर और ऑल्टर, मतलब लाइंस में लगो, लंबे क्यूज़ में लगो और ये सब करो, आज तो दिन है. वो हम करते हैं, वो ज़रूरी भी है. जैसे कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स पे जाना इट्स इंपॉर्टेंट. वो इंपॉर्टेंट क्यों है? दैट ऑल्सो आई विल आंसर. बिकॉज वी हैव टू कीप रिचार्जिंग आवर सेल्व्स. वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे लोग सारे हमारे जैसे बिलीव नहीं करते हैं ना. तो जब हम उनसे अपनी बात करते हैं या उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो शायद नहीं भी समझ पाते हैं और उसमें हमारी एनर्जी ड्रेन होती है. सो व्हेन वी गो अमंग एंड जब हम आउटसाइड वर्ल्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो हमारी एनर्जी का लेवल थोड़ा हो जाता है चेंज. तो उसको रिचार्ज करने के लिए, हमारी अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे रिचार्ज करने के लिए हमें मंदिरों में जाना होता है. बिकॉज दे आर द सेक्रेड प्लेसेस, दे आर द सैंक्टम सैंक्टोरम्स फ्रॉम वेयर यू रीगेन योर एनर्जी एंड यू विल रीलर्न द मोटिव ऑफ योर लाइफ. बट वंस यू हैव डन ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन देन यू नो यू. जैसे मैं भी अभी गई थी तो मैं 2-3 साल से तो नहीं गई हूँ. बट आई फेल्ट लाइक व्हेन आई वाज हियर, आई फेल्ट लाइक सो आउट ऑफ प्लेस. आई डोंट बिलोंग हियर. आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा था, लिटरली मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि आई डोंट बिलोंग हियर. पर जब मैं वहाँ से वापस आई तो आई फेल्ट सो रिचार्ज्ड एंड रिफ्रेश्ड दैट आई फील it's okay. We all belong here only. That's the thing. I again relearned the purpose of my life.
and that is the same thing to reach the goal of my life, and that is liberation. That is obviously God. फॉर अ जनरेशन लाइक आर्स जो बहुत ही फास्ट है, जो इतना नहीं सोचती है, जैसे यू आई थिंक लाइक वाइल टॉकिंग टू यू और जो पॉडकास्ट है, आई हैव गेन्ड दैट यू नो टू मच हमारी एज ग्रुप या फिर हमारी जनरेशन के हिसाब से. यू थिंक दैट कि हमारी जनरेशन जो इतना नहीं सोचती है, दे शुड थिंक अबाउट दैट, और कि ठीक है लाइक सबके अपने बिलीव्स हैं, इफ़ दे आर सम सॉर्ट ऑफ सुपरफिशियल थिंकर और उनको लगता है कि ज़्यादा सोचने पे लाइक आई विल बी गेटिंग डिप्रेस्ड वैसा वगैरह जो भी है, यू थिंक दैट पीपल शुड सिट बैक एंड रीथिंक अबाउट लाइफ और रीथिंक अबाउट द फेथ और द फॉलोइंग और प्रैक्टिसेस रिलीजन जो भी है? You have to rethink your choices. आई एम नॉट मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ कि हम इतना डीप जाते हैं और रिलीजन्स में इधर उधर मतलब ये बिलीव फॉलो करना है या वो करना है, और बिलीव्स के एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे वही कि हम नॉन वेज नहीं खाएंगे या फिर हम वो नहीं करेंगे. फाइंड अ रीज़न फॉर इट, लाइक वाई यू आर डूइंग इट. तो जो भी रिलीजन है, आप जो भी कर रहे हो, आपको अपने आप, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी द मीनिंग इन लाइफ यार. मतलब इसमें एज गैप नहीं आ जाता, मेरे मेच्योरिटी लेवल चेंज नहीं हो जाता. आई थिंक एंड आई लिव अमंग द सेम पीपल एज यू डू, बट द थिंग इज दैट आई वॉन्ट दैट वी हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन सेल्व्स. लोगों को क्या समझना और दुनिया को क्या समझना जब आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो. इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर ओन बिलीव्स, देन दैट्स अ थिंग दैट यू रियली शुड कंसिडर, यू शुड थिंक. मतलब उसमें ये नहीं सोचना कि मैं ज़्यादा सोचूंगा तो मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा. अगर आपको अपने अभी क्लैरिटी नहीं है इस पर, तो सोचो, बिकॉज आपकी क्लैरिटी मैटर करती है ना. सुपरफिशियल होने से अगर आपको लाइफ में चीज़ें समझ आ रही हैं, देन गो विद इट. बट अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, इट्स इनकम्प्लीट यार, वाई ही इज़ लाइक दैट और वाई शी इज़ लाइक दैट, एंड मतलब समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज़ दिस 24 आवर हम चलते रहते हैं, दुनिया घूमती रहती है. अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है एंड यूर ओके विद इट, जस्ट बी. बट देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स इज दैट. सो आई ऑब्वियसली गो बैक एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. व्हाट एल्स? आई थिंक लोगों में ना इंसाइट नहीं है चीज़ों की. इफ़ दे आर फीलिंग इन अ सर्टेन वे, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द आंसर्स, जो मेरी पिछली वीडियो भी थी, दे विल ट्राई टू फाइंड एन एस्केप. दे विल ट्राई टू फाइंड कि ओके आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, and then they go for the superficial stuff and they don't think about that much in life. Although everyone is suffering, जिससे भी पूछो everyone is suffering, but they don't want to find the answers to it. Anything you want to like advise them कि instead of going for the superficial stuff and short term pleasures, you should consider things and dig deep in life. That's what the main thing from where we started was about religion. अगर आप religion में किसी भी में अच्छे और सच्चे मन से मानते हो, तो it gives you a ground, it gives you principles in life to follow. और वो principles इसीलिए ज़रूरी होते हैं ताकि आप लोगों आप जब चीज़ों से या थिंग्स से हैंडल करो, तो आपको पता हो कि आपने कैसे उसको हैंडल करना है. और लाइक ये नहीं कि अभी मेरे पास ये प्रॉब्लम आई, चलो देखती हूँ, हट जाएगा. क्लाउड्स, लाइक पासिंग क्लाउड्स, इट विल मूव. ठीक है, इवन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, वी आर ऑल्सो आंसरिंग द सेम वे as you are facing. But the thing is that we have a core, and that core helps you to sustain it in a long, मतलब ज़्यादा टाइम तक आप सस्टेन कर लोगे, और कुछ नहीं. और जो मेन पर्पज़ है अगर आपको लाइफ का वो नहीं पता, देन नो यूज़ प्रैक्टिसिंग एनीथिंग और आंसरिंग सुपरफिशियली और डूइंग एनीथिंग इन लाइफ. सो या ऑब्वियसली डिग डीपर, मेडिटेट, एंड आई विल सजेस्ट दैट ओनली, क्योंकि द मेन एम इज़ टू रियलाइज दैट वी आर ऑल वन. क्योंकि अगर जब आप सोचने लग जाते हो, जैसे कि माइंड तो ऑब्वियसली इट्स अ बंडल ऑफ थॉट्स, यू कैन नेवर स्टॉप. एक तो आप रोक नहीं सकते अपनी थॉट्स को, तो वो तो आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, इट्स नेचुरल, बट लेट देम फ्लो. और मेन चीज़ ये है कि हम में और भगवान में यही डिफरेंस है, दैट ही इज़ रियलाइज्ड ही इज़ गॉड एंड वी हैव नॉट रियलाइज्ड दैट वी आर गॉड. अदरवाइज वी आर ऑल्सो गॉड, एंड दैट्स अ वेरी फार अवे कॉन्सेप्ट, बिकॉज इवन आई हैव नॉट रीच्ड येट. बट वही है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना कि आप सब सेम हो, तो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी हेट्रेड और जेलसी और anything at all. So yeah, dig deeper. If it takes you time, it's okay. पर आप धीरे धीरे किसी संस्था में जाना शुरू करो. पहले आप धीरे धीरे शुरू करोगे, it will slowly mold you into it. But I'll recommend that don't do it like religious belief. ठीक है, अब आज से मैं मानना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं मंदिर में जाऊँगा और मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा. उसका एसेंस बस वही है, वो नहीं भूलना जो उसका एसेंस है, कि हमने सब में प्यार बांटना है और हमने सेवा करनी है, और हमारा वही है, चाहे कुछ भी हो, हमारे यही प्रिंसिपल्स हैं, और ये हमें लाइफ की प्रॉब्लम्स को टैकल करने में ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, और कुछ नहीं है. अच्छा, कितने % लोगों को यू बिलीव लगता है दैट दे नो द ट्रू मीनिंग ऑफ डिवोशन?
और कितने लोगों को वो इंसाइट है कि दे नो दैट व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग, दे नो दैट व्हाट इज अ cause and what will they'll get out of it. See, we are all on different spiritual journeys, so we are nobody to assess कि उसने अपनी spiritual journey में उसकी क्या growth रही. This is a journey that is your own and it is unique. You can't compare it. So I'll not say कि कोई मेरे से इस level पे है या कुछ ऐसे है, because journey ही अलग है, path ही different है, जब question paper ही different है, you can't compare. So the thing is, this is everybody's own journey, but the thing is, yeah, we have to, there is way to realize the fact that अभी अगर मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ कि भगवान और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आई डोंट थिंक 1% विल अग्री विद मी. सो दैट्स योर, यू विल स्लोली रियलाइज, बट दैट इज ओनली द मेन एम इन लाइफ. हम रोज मंदिरों में जा रहे हैं, ये है, भगवान ने वेज दिए हैं, 9 to 10 वेज. लाइक आप जैसे कलयुग है, हमारा अपना युग है, तो इसमें जैसे हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम यज्ञ थोड़ी करेंगे भगवान को प्रेज करने के लिए, ये वो. तो ही जस्ट टोल्ड अस कि आप बस नाम जप करो, कि दिन रात जब टाइम लगे, यू हैव टू जस्ट से एक नाम पकड़ लो, जैसे लोग राधा ले लेते हैं, ये ऐसे ऐसे करके, तो यू जस्ट से एंड कंटिन्यूसली चैंट दैट नेम. तो डिफरेंट वेज आर देयर टू रीच द सेम गोल, एंड वो मैं चाहती हूँ मतलब कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करें, हम वो एसेंस को समझें कि हमारा मेन एम क्या है. वो दैट वी डोंट नो, वी आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग रिलीजन्स. वी शुड डिग डीपर एंड हैव दैट इनसाइट. So we are talking about religion, right? And there are certain people that don't follow particular religion, या फिर कुछ atheists भी होते हैं. But the thing is कि when they are in their like separate paths, they are not questioning each other's beliefs या जो भी है, तब तक ठीक है. बट जब वो एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व होके दे ट्राई टू क्वेश्चन ईच अदर्स बिलीव्स, कि जो रिलीजियस पीपल है दे विल ट्राई, जो नॉन रिलीजियस लोग हैं उनके लिए कि वाई यू डोंट फॉलो पर्टिकुलर लाइक माई रिलीजन स्पेसिफिकली, और जो नॉन रिलीजियस लोग हैं दे विल ट्राई टू क्वेश्चन द रिलीजियस वंस कि क्या मिलता है करके. आई थिंक द टाइम हैज़ चेंज नाउ, थिंक अबाउट योरसेल्फ. तो you want to say something about it? Spirituality is not about transforming people. We are not here to transform others. We are here to transform our own lives. Change begins from our own self, like we've always heard. तो और ये spirituality चीज़ ही ऐसी होती है. अच्छा, sorry, what is the difference between being a religious and being a person who is spiritual? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कभी कभी दिमाग में. They are mere words. Essence is again the same. Spirituality is only from like it's giving up the animal qualities in us and attaining something higher, realizing that we are divine and how we are different from the various stratas of life, and religion is just a way to attain that. तो मतलब आप paths लेते हो बस, और वैसे तो सिर्फ शब्दों का अंतर है और कुछ नहीं है, मीनिंग इन सबका सेम ही है. It is something that touches you in its own way. आपको खुद महसूस होगा, योर हार्ट्स, योर लाइव्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड सो स्मूथली एंड नोबडी विल थ्रस्ट इट अपॉन यू. इफ ही वॉन्ट्स दैट यू रियलाइज एंड कम इन टू हिज फोल्ड, it will come like magical moments to you and you'll not even realize. And it will touch you so deep that you'll become an ardent devotee, so strong, not even compared to others. बट जब आप वैसे बन जाते हो ना, तो आप लोगों को जाते नहीं बताते कि ये है मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ, और तुम इस स्क्रिप्चर को पढ़ो तो तुम इतने महान हो गए, महाभारत में ये हुआ था, रामायण में ये हुआ था. यू डोंट डू सत्संग्स, you realize it for yourself and you become a totally changed person. After all of this, I want to ask you that how you see as a non-religious person who doesn't believe in anything, or how do you perceive atheists? I told you that I see everybody. सब में मैं खुद को ही देखती हूँ. मतलब that is, ये selfish नहीं है, ये है that you see the same in all. You see the same आत्मा in everybody. So bodies are impermanent, like I said. So वो मेरे को मैटर नहीं करता. I don't judge people. वो उनके अपने beliefs है, अपने right, ठीक है, जैसे भी है. They're on their own spiritual path and on their own spiritual journey. And when He wills it, when God wills it, then it will touch upon us in a magical way, like I said. So you will also have your own time. It will be a beautiful beginning for you then. So I'm glad that I am in it. Yeah, I'm fortunate. And yeah, so I don't see anything different. You guys are not something different from us. You're on your own spiritual journey. Like I said, it cannot be compared at all. So we don't look down on you or anything. ऐसे जो होते हैं कि मेरा ये है, ये तो मानता ही नहीं है, ये तो ऐसा है, या तो ये वैसा है. तो जो असली में भगवान को मानते हैं उनको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता. Because when divinity touches upon you, it is so beautiful that these kind of things don't matter. You just wish that the other person also gets to experience. With the time we are seeing that people are drifting away from the beliefs. कुछ लोग obviously हैं
और उनकी फैमिलीज़ हैं, एंड देन दिस इज़ लाइक अ जनरेशनल थिंग जो आगे पास ऑन होती है. बट मेन स्ट्रीम पे इफ़ आई टॉक अबाउट, देन पीपल आर ड्रिफ्टिंग अवे. That people are more practical these days. People are like कि it's not always about beliefs that you have to, you know, inherit in life, and do things on your way, what's good for you. So you think that religion, now it's a kind of controversial question, but do you think that religion will be relevant after, let's say, 100 and 150 years from this, like how it is relevant today, considering the fact कि it was very very relevant in 1900s, and in 2020s people are kind of practical now. सो अगर वो इसी तरीके से चलता आया दैट इट्स बेस्ड ऑन दोज बिलीव्स in which you don't truly believe, and you just follow it in order to respect your parents or out of love for your family and not because you have felt it, then it might not, like you said, it might not last. But the thing is that people like us will always be there, and we will believe because what we've realized, और इंडिया तो यार कंट्री ही ऐसा है, तो इसमें से रिलीजन का एक्सटिंक्शन तो ज़ीरो. India में तो it can never, Yeah. it can never. And the thing is that, in fact, now that if we have become more practical, we should use it in the right sense to realize कि beliefs इतना matter नहीं करते. अगर आप जैसे संडे थर्सडे को बाल नहीं धो रहे हो या थर्सडे को नेल्स नहीं काट रहे हो तो या कपड़े नहीं धो रहे हो, वो मैटर नहीं करता. जो आपका मेन एसेंस है, अगर आप वो रियलाइज़ कर रहे हो तो जस्ट फॉलो योर बिलीव्स. सो दैट वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ये सब नहीं मानते तो ठीक है, मैं लोगों के साथ अच्छा हूँ, तो मुझे मंदिर में या फिर रिलीजन में बिलीव करने की क्या ज़रूरत है. वो बस इसीलिए बिकॉज दैट्स अ वे टू चैनलाइज योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, ताकि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो जो इतनी इंपॉर्टेंट है आपको अपना गोल रियलाइज करवाने के लिए. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द कोर, द डेप्थ ऑफ इट, एंड लाइक आई सेड दैट even this conversation between us is also destined. Yeah, it was meant to happen that you meet and I meet you, that this goes about like this. तो ऐसे लोगों में मैसेज तो जाएगा, it will spread. It is meant to spread and it will never end. तो there is no place of extinction at all. But yeah, those who will, it will be unfortunate for those who will not realize the real reason behind following these beliefs and they just go on. जैसे लड़कियों में भी होता है कि periods में हम मंदिर नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक दैट. लाइक इट्स, चलो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग. या लाइक आई सेड, इफ यू वुडंट हैव आस्क्ड मी आई वुड हैव नॉट इवन गॉन अबाउट टेलिंग पीपल. बट इट्स जस्ट, अगर आप फॉलो कर रहे हो रिलीजियसली तो फॉलो करो. देयर इज नथिंग लाइक रॉथ ऑफ गॉड्स लाइक दे से कि अगर हम ऐसे करेंगे तो भगवान हमसे गुस्सा हो जाएंगे. तो यार भगवान तो करुणामय हैं, मतलब दयालु हैं एकदम. हिज हार्ट मेल्ट्स लाइक बटर व्हेन यू हैव डिवोशन एंड लव अलोन. And like I said, he is no different from us. So when you reach that level, you'll have no issues at all about this. Or religion is no chance of extinction. One of the last questions मेरा जो है, कोई भी belief तब तक चलता है या फिर कोई भी faith तब तक चलता है until and unless you meet a very grievous situation in life. कोई ऐसी situation आ जाए, कोई ऐसी tragedy हो जाए, तब तुम्हें यू ट्राई टू क्वेश्चन. वही पीपल से कि मेरा भगवान से भरोसा उठ गया आफ्टर दिस एंड दैट. मेरा है कि हैव यू लाइक मेट सर्टेन ग्रीसम सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे यू हैव क्वेश्चन कि मैं इतना टाइम के बावजूद भी इफ़ आई एम इन दिस वल्नरेबल पोजिशन, तो व्हाट इज़ द मीनिंग. हाँ, ये बहुत कॉमन है. जैसे लोगों के घरों में डेथ हो जाती है तो जब तक पेशेंट बेड रिडन होता है तब तक वो प्रेयर करते रहते हैं कि प्लीज़ भगवान जी मेरे दादू को बचा लेना, मेरी दादी को बचा लेना. और अगर एंड में कुछ ऐसा नहीं होता जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं तो दे आर लाइक यार माई होल लाइफ आई हैव बीन प्रेइंग एंड लाइक व्हाट डिड ही डू, ही वाज नॉट देयर व्हेन आई नीडेड हिम. उस टाइम यार हम लोगों को समझा नहीं सकते बिकॉज दैट्स अ वेरी, मतलब बहुत ही सीरियस ऐसी रोने वाली सिचुएशन होती है जब उस आदमी समझने की शक्ति नहीं होती उसमें कि वो आपकी इतनी बड़ी बड़ी रिलीजियस बातों को समझे. सो जस्ट लेट हिम हैंडल. लेकिन लॉन्ग वे पे, लॉन्ग रन में आपको ये समझना है कि गॉड इज़, मतलब ही इज़ नॉट अ कल्प वृक्ष कि वो आपकी विश फुलफिलिंग ट्री नहीं है. इट्स समथिंग विच यू आर गोइंग टू अटेन. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल कि हमें एक्सपेक्टेशंस, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही है. देयर विल बी डेफिनेटली समथिंग good in it, and I have faced situations, yeah, like 2023 we got in, but the 1 year before that I was like, nobody can defeat me, I know my Lord will take care and he will make me get through this, I'll get it through, like in my first attempt and all. But later I realized, I didn't get in obviously, मुझे भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ी और मतलब कुछ भी है.
और उसके बाद मेरी सिलेक्शन भी 23 में हुई. बट यू वोंट रियलाइज दैट द ईयर बिफोर दैट इफ आई वुड हैव गॉट सिलेक्टेड द होल आई वुडेंट हैव बीन हियर ओनली. मतलब वो क्राइटेरिया ही डिफरेंट था कि आप इस कॉलेज में अप्लाई ही नहीं कर सकते अगर आपकी 10th और 12th यहाँ से नहीं है. तो कैन यू इवन बिलीव, कैन यू इमेजिन, मतलब मिरेकल्स, दे आर लिटरली मिरेकल्स. आप जब तक आप भगवान में नहीं मानोगे ना और आपको नहीं लगेगा दैट दीज आर मेंट टू बी थिंग्स, यू विल फील लाइक यार उसने ही डिसअपॉइंटेड मी. बट बिलीव मी, ही इज़ द ओनली वन हु कैन नेवर डिसअपॉइंट यू. योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, everybody will disappoint you because you will have expectations and they will not live up to them, whoever your kith and kin is, but they will not be able to live up to them. भगवान से आप expect ही नहीं कर सकते हो because he'll give you in abundance. तो उस वक्त पे ये समझना मुश्किल हो जाता है जब आप पे ग्रीफ पड़ता है, बट लॉन्ग रन में सब समझ में आता है. Again, one of the last questions. Who, according to you, is the happiest country in the world? And I'll tell you what is the context of it. मुझे आइडिया नहीं Like, I think Sweden and Norway है, है. अच्छा. or like let's say West है. And according to you, is the least happy country. So India नहीं है, but India lies in that. ठीक है. And now my question is, which country is the most religious country in the world? India. And which countries are the least religious countries in the world? Yeah. That is Got it. Norway and Sweden. तो how would you justify कि जहाँ पे इतना belief system इतना strong है, why that country has to lie in misery? And why जो countries are very carefree, जो मैं बोल रहा हूँ वही superficial चीज़ें ज़्यादा सोचती ही नहीं है. I don't think कोई European या कोई American they would sit like this and talk about this issue. They would do million other stupid trends and but I believe कि ठीक है जो भी है they are happy and we are very much talking about it and engrossed in things like that. So how would you justify it? Yeah. See, Anshul, it's easier to mold those minds who don't believe only in anything. जब आप बच्चे होते हो ना और आपको किसी रिलीजन पे लगा दिया जाए तो आप मानना शुरू कर देते हो ना. तो it's easier to mold those minds who are like practical, okay, not believing in anything, rather than changing those who have already opted something so rigid that they are not going to look about, like अब नहीं समझेंगे वो, हमें पता है हम सही रास्ते पे हैं. It's easier to talk to you because you're open-minded right now and you can understand what I'm saying. So it's like that with the foreigners. They are not, they believe, yeah, they are Christians and this and that, but like they know that like मेरे भी contacts में बहुत ऐसे foreigners हैं who believe in what I am saying and they know because उनको ना अपना मकसद पता है यार life का, purpose of life they know. If you know that, then religions, beliefs and this rigidity doesn't matter. I think वो ही sum up करता है कि हम जो है we don't know the purpose but we are following things blindly in a hope. नहीं, it's true, in a hope that things will come. हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, but we are going to the temple and day in and day out we are praying to the God कि हो जाए हो जाए हो जाए. So we are very good in praying, we are very good in manifesting, but we are not very good in finding the exact pathway to get into that situations. और हम beliefs पे बहुत ज़्यादा believe करते हैं, but that will not obviously come true until and unless you work hard or Realize the essence. you realize the essence कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो चीज़ों को. So great conversation by the way. We are heading towards the last. Any last message you want to give to the viewers? कि what was the crux? That is my go-to word. What is the crux of this podcast? So like what I'll say in easier words is that the ultimate source from where we have all come, that is only the goal, to merge back into him. So for that we should just believe that God is immanent in all. कि ईश्वर सर्वभूतानाम, कि वो सभी लोगों में एक ही भगवान है. तो basic, just realize that part. And guys, all of you know, with all due respect to every religion, just follow your own religion with full authenticity and the belief and confidence that you are on the right path. And like nobody can shake your faith ever. तो किसी को वो हक नहीं है कि वो आपके फेथ को हिला सके through their science or whatever, because science is only half circle and spirituality completes it. So that's all. Great conversation. I think being a non-religious person, obviously I admit this conversation might make a difference in my Might life. open your mind. Might open mind and I might question certain things जो मैं नहीं करता था. Yeah, काफ़ी clarity मिली मुझे इस conversation से. Great talk. And with this conversation अभी जो भी हुई है, I must compliment you कि how strong and opinionated you are. और मुझे बहुत अच्छा लगा that you have that clarity and the way you were speaking things.
कि यू नॉट डिल्यूजनल एंड यू आर नॉट इवन इन दैट बबल कि मैं कि यू नो कुछ लोग होते हैं कि दे नो कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल थोड़े उस पे होते हैं कि क्या ये ठीक है क्या गलत है. बट आई मस्ट लाइक कंग्रेचुलेट टू यू फॉर दैट. So yeah, that was a great discussion, and comment down below anything you want to ask. guys, we're open for likes and dislikes. Open for likes and dislikes. Yeah, that I think वो उसके लिए थी भी नहीं. What is the point of? Yeah, we don't. If you are really religious, this will not affect you at Yeah, all. at all. Yeah, But कोई भी queries होंगी, I think she will answer to that. Yeah, I'm totally open. हमने बिल्कुल plan नहीं किया था. Yeah, I think this conversation was a very this accidental, na? Yeah. But it turned out to be so good. That's what matters. Yeah, and we'll see you guys in another one. New Year. Happy New Year again. Happy New Year, guys.